Yes, so very good afternoon, boys and girls. Let us continue with our topic, that is theory of demand. Theory of demand and supply का सी फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमने पहला पार्ट theory of demand पढ़ना शुरू किया है. Where we have understood what do we mean by demand. Demand is constituted with three elements: desirability and willingness. Then we saw demand is expressed in terms of quantity, price and time. Then we saw there are various determinants of demand, जिसमें अब तक हम देख चुके हैं how price of a commodity determines demand. Then we saw how the prices of the related goods determine demand. Then we saw how does income of consumer determine demand. Lastly, we saw what are the expectations about the consumers which determine demand. Yes or no? These are the several other factors which we have discussed till date, which determine the demand for a commodity. Taste and preferences also in the last lecture we have discussed. Yes, till particular point does anyone have any sort of doubt? किसी कोई doubt है? Shall we go ahead with things? So after completion of consumers expectations, हमने consumer expectation को भी तीन तरीके से पढ़ा. Expectations about price, expectations about income, expectations about supply. Right? Now let's go ahead with other factors which affect the demand. These are the five major factors which affect the demand, but other than these factors there are several other factors which also have to be studied for understanding the determinants of demand. जिसमें पहला आता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन. देखो समझने की कोशिश करो, एक आइलैंड है, राइट? आइलैंड, ये चूचू है, ये पेड़ पौधे हैं, राइट? व्हाटसोएवर. अब इस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता. डू यू थिंक देयर विल बी डिमांड? नो पर्सन, नो ह्यूमन बीइंग, नो डिमांड. यस और नो? आया ना? Let's say 10 people settle down there. Will there be demand? Yes. 100 people, now the population increases from 10 to 100. Will there be increase in demand? Yes. Now let's say the population is now 100 crore as like India. Do you think there will be tremendous increase in demand? Yes. I hope you all must be knowing that the fact that every country considers India to be a potential market. Indian market is considered as a potential market by each and every country across the globe. Yes or no? Why do you think it is considered as a potential market? Because ultimately we have the human resource who are going to consume. Producer goods बनाता है, लेकिन उसे consume कौन करेगा? इंसान. Ultimately what is required? Population is required. है ना? Yes or no? So market potential के हिसाब से इंडिया और चाइना सबसे बड़े मार्केट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग है. है ना? जैसे ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन साइज बहुत कम है. वहां पे लार्ज स्केल अगर प्रोडक्शन करेगा तो वहां डोमेस्टिक मार्केट में कोई स्कोप है क्या? नहीं. They'll have to search other market where there is large size of population who can consume the excess of the commodity which they produce. Yes or no? That is the reason we import on large scale dal from Australia. Tur and all dal are imported from Australia because they have excess of production even after fulfilling the demand of the local population. So what is ultimately required for making a demand? Population. Yes or no? So can I say more population, increase in population leads to increase in demand, and decrease in population leads to decrease in demand. If there is no person on the island, there can be no demand. If there are 10, there can be slow and steady increase in demand. If this 10 population reaches 100 crores, then there will be a tremendous increase in demand. So what we particularly trying to say here is, as the size of the population increases, demand increases. As the size of population decreases, demand decreases. Since there is a direct positive relationship between size of the population and quantity demanded of any commodity. Yes or no? Hi na? So this is what we have in the population point. As the population size increases, demand increases. As the population size decreases, demand decreases. हाँ या ना? अभी okay? Next, composition of population. Ultimately, how is the composition of population will also derive the demand. India is a youth country. India is a youth country. यानी major population is below 35. 65% of the Indian population is below 35. The average age index of India states that average person living in India is aged 26 years. I told you this in population chapter of economics 11 standard. Yes or no? Right? The average age of Indian living in India is 26. Yes or no? 65% of the population is below 35. Population chapter के सेंसस में आपने देखा है 35% से ज्यादा लोग 35 उम्र से कम के हैं. हाँ या ना? Sorry, 65% around. 65% people are below 35 age.
सो कैन आई से इंडिया इज ए यंग कंट्री? यस और नो? तो हमारे यहाँ क्या चलेगा? यो हनी सिंह चलेगा? यो हनी सिंह चलेगा क्या? 4 बोतल काम मेरा, ना मुझको कोई रोके, 4 बोतल काम मेरा। हमारे यहाँ क्या चलेगा? यो हनी सिंह, राइट? जितना क्रेज हनी सिंह का है, क्या उतना क्रेज बाबा रामदेव का हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? इफ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफ एज, इज ऑफ यूथ, yes or no? Let's say 65% of the population living in India is above 50 years. Then it would be सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, राइट? तो ज्यादा क्रेज किसका होता? बाबा रामदेव का. So what you are trying to understand that the determinants of population is also the composition of the population. अगर हमारे पॉपुलेशन में ज्यादा संख्या युद्ध की हो तो हमारे यहाँ युद्ध रिलेटेड जो भी चीजें है उसकी ज्यादा डिमांड होगी. जीन्स, टी शर्ट्स, टॉप्स, राइट? ये हिसाब से ये सब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी. और वही 50 से ज्यादा लोगों की हो तो नेहरू शर्ट, कुर्ता, धोती, लुंगी, इन सब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी. क्योंकि ज्यादा एज में जाने के बाद दादा लोग थोड़ी जीन्स वगैरह पहन के घूमते हैं, राइट? So this is how thing changes. So can I say demand changes with the change in the composition of the population? अगर इंडिया में 65% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेंट का, छोटे बच्चों का होता तो हमारे सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती? टॉयज की. किसकी ज्यादा होती डिमांड? टॉयज की, चॉकलेट्स की. तो कैन आई से जैसे जैसे हमारे यहाँ एज कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन यानी किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, तो जिस एज ग्रुप के जितने लोग हैं उसके हिसाब से हमारी डिमांड होगी. डू यू एग्री? डू यू एग्री? अगर यहाँ हमारे यहाँ मेजर पॉपुलेशन यूथ है तो हमारे यहाँ क्या चलेगा? यो हनी सिंह चलेगा. मेजर अगर बूढ़े लोग हैं तो क्या चलेंगे? बाबा रामदेव चलेंगे, राइट? और मेजर अगर छोटे हैं तो डोरेमोन चलेगा. यस और नो? आया ना? अग्री? छोटा भीम चलेगा. अग्री? यस और नो? दिस इज व्हाट वी हैव ऑन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. Composition of the population refers to the age composition of the population. As per 2001 census, following is India's age composition. 2001 का सेंसस है. 0 to 14 में कितने हैं? 35.6%. So that shows कि इंडियन मार्केट के अंदर टॉयज, चॉकलेट्स, डोरेमोन का बहुत स्कोप है. कितना पॉपुलेशन है? 35.6%. बेन 10 बहुत स्कोप है. हो तुम जेरोक्स भी बेटा उसके. Next, 15 to 59. Now this is considered as a young age group. इसकी संख्या कितनी है? 58.2. इसीलिए सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड उन चीजों की होगी जो यूथ रिलेटेड है. देन अबव 60 और 6.2. इसीलिए व्हील चेयर, वो लकड़ी, फिर उसके बाद धोती, इन सब चीजों की डिमांड है. लेकिन जीन्स की उतनी ट्रेमेंडस डिमांड है क्या? नहीं, क्योंकि इन लोगों की संख्या क्या है? कम है. आई गेटिंग माय पॉइंट? Yes or no? From the above information, we can conclude that there is more demand for toys and yo-yo honey sing. Yes or no? Aya na. Moving on to the next point, the level of income and its distribution. The level of income and distribution we are going to talk. Propensity to consume is the word we need to understand first. Propensity to consume. New concept, please pay attention. Every day we learn in economics or every day we learn in foundation is new. Nothing of yesterday is repeated today. Did I repeat any of one thing in any of the lecture? No. Every day we are learning something new. That is the reason I keep saying कि फाउंडेशन का एक लेक्चर भी मिस मत करना, क्योंकि एक भी लेक्चर मिस करोगे तो सेकंड डे समझ में नहीं आएगा पिछले दिन में क्या हुआ, और अगले दिन का इस दिन से कुछ लेना देना भी नहीं है. So please don't miss on any lecture. So point here is propensity to consume. Propensity to consume refers to the proportion of income used for consumption. The level of national income and its distribution also determines demand. For understanding how does national income and distribution of national income affect the demand, we need to understand propensity to consume concept. National income यानी क्या? इंडिविजुअल की इनकम या पूरे देश की इनकम? It is the money value of goods and services produced in the country during a year. So national income defines the income of the country or the economy, does not define the income of an individual.
पूरी देश की कमाई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन. एंड हाउ दिस नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री. इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली? Is it distributed unequally? That is to be understood. Then we can understand the effect of national income and distribution of national income on the demand. उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी इस वर्ड का मतलब है प्रोपोर्शन. कहीं लिखना है तो लिख लो. प्रोपेंसिटी इस वर्ड का मतलब है प्रोपोर्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी मीन्स प्रोपोर्शन. So propensity to consume refers to the proportion of income used for consumption. Proportion of the income used for consumption. Let's say, as you all know, as you rightly know, that my monthly income is 4,500 rupees. Yes or no? Is my monthly salary 4,500 per month. So 4,500. अरे सुनो रे, 4,500 is my monthly salary. So 4,500 is my monthly salary. अब इस monthly salary में से let's say I am spending 4,000 rupees. Let's take this 5,000. थोड़ा सा वापस वो परसेंटेज निकालने के लिए और दिक्कत जाती है. 5,000 rupees. My monthly salary is 5,000. हुआ तो नहीं मेरा प्रमोशन. लेट्स से 500 रुपए का बोनस चालू हो गया नए साल से. सो 5,000 रुपीज पर मंथ इज माई मंथली सैलरी एंड आउट ऑफ दिस 5,000 रुपीज पर मंथ आई एम स्पेंडिंग 4,000 रुपीज ऑन माई कंजम्पशन, ऑन वेरियस नेसेसिटीज ऑफ माइंड. रोटी कपड़ा मकान, इसके ऊपर 4,000 रुपए मैं महीना खर्च कर रहा हूं. बेसिक गुड्स के ऊपर इतने में तो इतना ही आएगा बेटा. सो 4,000 रुपीज आई एम स्पेंडिंग ऑन माई कंजम्पशन. नाउ द पॉइंट इज propensity to consume means the proportion of the income which is used for consumption. Propensity to consume. Propensity का मतलब होता है proportion. To consume यानी proportion of the income which is utilized for consumption. चौधरी जी बरोबर है का? Proportion of the income which is utilized for consumption. Now what is my income? 5,000 रुपीज. उसमें से कितना मैंने प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे लिया है? 4,000. अगर परसेंटेज वाइज निकाले तो 10% कितना होता है? 500. सो 80% कितना हुआ? बरोबर हुआ कि 80%? सो कैन आई से 80% इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. व्हाट इज माई इनकम? 5,000. 5,000 का 80% कितना हुआ? 4,000. सो द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 80%. So इससे क्या समझ में आता है? Proportion of the income which is utilized for consumption is called as propensity to consume. How much is the proportion of my income which I use for consumption? 80%. है ना मुंद्रा जी? कितने? 80%. मेरे इनकम के 80% मैं कंजम्पशन पे खर्च करता हूं. So that 80% is the proportion of the income which I spend on my consumption. So 80% is the propensity to consume. पूरे इनकम का कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज मैं कंजम्पशन के ऊपर खर्च करता हूं, दैट डिफाइंस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इज दिस ओके? इज दिस ओके? कंसेप्ट समझ में आया? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ में आया? तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे एग्जांपल में कितना है? 80%. अग्री? अग्री एवरीवन? इज दिस ओके एंड फाइन? चलिए, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल. As the propensity to consume increases, as the propensity to consume increases, demand increases. As the propensity to consume decreases, demand decreases. Now what is propensity to consume? Portion of income which is utilized for consumption. अभी कितना है मेरा propensity to consume? 80%. Let's say propensity to consume increases to 100%. तो मेरा consumption कितना होगा? 5,000. यस और नो? मेरा कंजम्पशन कितना होगा? 5,000. पहले कितना हो रहा था? 4,000. तो अब मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं. ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो ज्यादा डिमांड करूंगा, तो इसे अल्टीमेटली डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी. कंजम्पशन करना यानी डिमांड करना है ना? कंज्यूम करना यानी डिमांड करना. तो अगर मेरा कंजम्पशन 4,000 से 5,000 होता है तो मेरा ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा कि कम होगा?
बढ़ेगा। सो इसीलिए क्या दिया है, एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। लेट्स से माय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सिट प्रॉपर्ली, माय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम decreases to 50%. So 50% of the income is 2500. अर्लियर मैं कितना कंज्यूम कर रहा था, 4000। अभी मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, 2500। कितना कंज्यूम कर रहा हूं मैं, 2500। इज द रिडक्शन इन द कंजम्पशन? यस, देयर इज रिडक्शन इन कंजम्पशन, देयर इज रिडक्शन इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में रिडक्शन है, कंजम्पशन में रिडक्शन है, तो डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? पहले मैं 4000 की चीजों का डिमांड कर रहा था, अब मैं कितने चीजों का डिमांड कर रहा हूं, 2500 रुपए के। तो मेरी डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? समझ में आया? एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। हेंस देयर इज डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume and demand, quantity demanded. Is it okay? Now we have understood what is propensity to consume. How does propensity to consume affect the demand? Now let's try to understand national income and its distribution along with propensity to consume. How does it determine the demand? कैसे? Now there are few ways to understand the particular concept. नेशनल इनकम, अब इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम लेट्स से हमारे देश की नेशनल इनकम 1000 है। कितनी है? 1000। कितनी है भाई? 1000। हाँ या ना? यस और नो? हमारी नेशनल इनकम कितनी है? 1000। एक मिनट, यहां पर ये ऊपर वाले इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एक मिनट, ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये तो अभी समझाने की जरूरत है क्या? ये समझाने की जरूरत है क्या? ऑलरेडी तुमको 80% वाले एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया है, उसके ऊपर ही एक और न्यूमेरिकल दिया गया है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? अभी जो मैंने न्यूमेरिकल समझाया 5000, 4000, 2500, वो समझ में आया? वो समझ में आया? डू आई हैव टू एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल? नो। चलिए यहां से आगे नीचे आ जाइए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ national income and its distribution and propensity to consume. There can be two ways of distribution of national income. दो तरीके से नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक तरीका है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोला मैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो मैंने नीचे की तरफ कंसिडर किया है। 100, 100, 100, 100, 100। Let's say we live in a socialist country. सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री रहते हैं, यहां पे क्या रहता है? इक्वल रहता है, हर कोई इक्वल है, राइट? यू हैव लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. यूएस इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यस और नो? यूएस इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. देन वी हैव कम्युनिस्ट also, socialist also. Socialist, capitalist and mixed. India is mixed. We have little bit of socialist, we have little bit of capitalist. So हमारे देश का नेशनल इनकम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है नागलिकर. Either it is distributed equally or either it is distributed unequally. अगर किसी इकोनॉमी में देश की नेशनल इनकम को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से डिमांड कैसी होगी, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहता है तो उसके हिसाब से डिमांड कैसे होगी, ये अभी हमें समझना है. हमारे देश में, हमारा छोटा सा देश है, हमारे छोटे से देश में 6 लोग हैं. 1 2 3 4 5 सॉरी 5 लोग. 1 2 3 4 5. हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं? 5 लोग. यस और नो? अब दो तरीके समझने हैं. ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जब आप लिखो तो इनकम के आगे लिख देना अनइक्वल और इक्वल. थोड़ा सा करेक्शन है, अनइक्वल और इक्वल. अब पहले इक्वल की तरफ नीचे समझने की कोशिश करते हैं. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, देश का नेशनल इनकम 500 है. देश का नेशनल इनकम कितना है बच्चा? 500. कितना है? 500. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी सभी के पास कितना होगा? 100 100 100 100 100, जैसे कि वहां दिया गया है. बरोबर.
एग्री? ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देश में सबकी कमाई एक जैसी, प्रधानमंत्री से लेके सेवक तक, चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक, सबकी कमाई कितनी है? 100 रुपए। नेशनल इनकम और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इक्वल है। ओके। और दूसरा पार्ट क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे हमारे देश में अभी क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या अनइक्वल है? अनइक्वल। हमारे यहाँ गरीब के पास बहुत गरीब है तो अमीर तो बहुत अमीर भी है। मुकेश अंबानी जितना अमीर कोई है क्या? नहीं, राइट। और जो भिखारी बेगर होते जो रेलवे स्टेशन पर रहते उनके जितना गरीब कोई है क्या? नहीं। तो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके बारे में पॉपुलेशन चैप्टर में भी डिस्कस किया था, उस वीडियो में बताया था कि हमारे देश की कितनी परसेंट? 78% वेल्थ कितने लोग ओन करते हैं? याद आया कुछ? इंडिया की 78%, याद आया कुछ? हाँ? इंडिया की 78% wealth is owned by 1% of the population. 1% of the population of India owns 78% of India's wealth. कितनी? And remaining 99% of population owns 22% of India's wealth. Okay? अगर आपको याद है जी न्यूज का जो मैं बताता था उसके अंदर दिखाया था आपको कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तब हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है? 500। अब हम 500 को अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले वाले के पास चले गए 350 रुपए, सबसे अमीर आदमी देश का, उसके पास कितने चले गए? 350 रुपए। दूसरे के पास गए 20 रुपए, तीसरे के पास गए 30 रुपए, चौथे के पास गए 50 रुपए और पांचवे के पास गए 50 रुपए। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अनइक्वल तरीके से हो गया है। नाउ लेट्स से बेसिक कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी है दैट इज बेयर मिनिमम ऑफ 80 रुपीज। कितना है वो? कितना है? 80। हर एक इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए, एक ठीक ठाक जिंदगी के लिए जितना कंजम्पशन करना है उसके लिए कितना पैसा चाहिए? 80। अगर सभी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहा तो सबकी इनकम कितनी है? 100। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो हर एक व्यक्ति की, 5 में से हर एक व्यक्ति की इनकम कितनी है? 100 रुपए। नीचे वाला पार्ट। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो हर एक व्यक्ति की इनकम कितनी है? ज्यादा, 100 रुपए। हर एक की इनकम कितनी है? 100 रुपए। व्हाट इज इनकम ऑफ एवरी पर्सन? 100 रुपीज। नागलीकर के पीछे कौन है? आ गया, शिंदे की बाजू में बैठो। चलो, हर एक की इनकम कितनी है? 100। बेयर मिनिमम सर्वाइवल के लिए हर किसी को कितना खर्च करना है? 80 रुपए। तो हर किसी के पास 100 रुपए इनकम है और 80 रुपए बेयर मिनिमम लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी लिविंग के लिए जरूरी है। तो क्या हर कोई 80 रुपए खर्च करेगा अपने कंजम्पशन के ऊपर? यस। अगर आपके पास 100 रुपए कमाई है और बेयर मिनिमम अच्छा जीने के लिए अगर 80 रुपए का कंजम्पशन करना है तो आप में से हर कोई कंजम्पशन करेगा 80 रुपए का? यस। तो इन पांचों में से हर व्यक्ति अपने 100 रुपए की कमाई में से, अपने 100 रुपए की कमाई में से कितना कंजम्पशन करेगा? 80 रुपीज। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है यहाँ पे? 80%। कितनी है? 80%। इनकम कितनी? 100। कंजम्पशन कितना? 80। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी? 80। तो ओवरऑल कंजम्पशन कितना हुआ? 400। ओवरऑल कंजम्पशन कितना हुआ? 400। देश की नेशनल इनकम 500 रुपए, उसमें से कंजम्पशन 400 रुपए, तो देश में डिमांड कितने का हुआ? 400 रुपए का। देश में डिमांड कितने का हुआ? 400 रुपए का। है या ना? अब बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मिनिमम कंजम्पशन के लिए पैसा कितना चाहिए? 80 रुपीज। खाली पहले व्यक्ति के पास 350 रुपए है, बाकियों के पास तो 80 के भी वांदे हैं। बरोबर है? तो उनके पास स्कोप नहीं, जितना कुछ है वो सब कुछ खर्च देंगे। लेकिन जिसके पास 350 रुपए, वो क्या 350 रुपए खर्चा करेगा क्या? अब मुकेश अंबानी के पास 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है तो क्या मतलब 1 लाख करोड़ रुपए रोज खर्चा करता है क्या? नहीं। जितनी उसकी जरूरत है उतना वो खर्च करेगा। 350 रुपए पहले व्यक्ति की कमाई है, उसमें से वो खर्च कितना करेगा? 80 रुपीज। आया ना? बाकी वो क्या करेगा? खुद की सेविंग रखेगा।
दूसरे व्यक्ति के पास तो 20 रुपए ही है, बस उसको तो पूरा खर्चा करना है। तीसरे के पास कितने हैं 30, वो भी पूरा खर्चा कर देगा, ये 50 भी खर्चा कर देगा, ये भी 50 खर्चा कर देगा। ये क्यों हो रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो पहले वाले के 80, दूसरे वाले के 20 मिला लो, कितने हो गए 100, फिर ये दोनों के 50-50 200, और ये बचे वाले व्यक्ति के 30 रुपए। तो पूरे इकोनॉमी में से कंजम्पशन कितना हो रहा है 230 रुपए। तो कैन आई से आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल, whenever there is unequal distribution of income, the propensity to consume is low and the demand is less in the economy. Yes or no? अब 400 बढ़ा या 230 बढ़ा? तो 400 रुपए का कंजम्पशन होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, या 230 रुपए का इसमें कंजम्पशन में डिमांड ज्यादा होगा? ज्यादा कंजम्पशन यानी ज्यादा डिमांड। ज्यादा डिमांड और ज्यादा कंजम्पशन कब हो रहा है? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। यस और नो? डू यू एग्री नाउ? जहां पे हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिया वहां पे कंजम्पशन कितना जा रहा है 400 रुपए, तो वहां पे डिमांड क्या ज्यादा है। लेकिन जब हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहे हैं तब हमारा ओवरऑल डिमांड कितना हो रहा है 230 रुपए। व्हाट इज द ओवरऑल डिमांड? 230 रुपीज। अब 230 रुपीज को अगर हम कंपेयर करें 400 से, तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवरऑल कम हो गया है। यस और नो? यस और नो? क्योंकि अगर 500 का 400 पकड़े तो इट इज 80%, इट इज 80%। लेकिन 500 का 230 पकड़ेंगे तो इट इज लेस देन 50%, इट इज लेस देन 50%। अग्री? अग्री और नॉट? इट इज अराउंड 46 47 समथिंग, है ना? सो कैन आई कंक्लूड, whenever there is national income and if it is distributed equally, propensity to consume is high and overall demand is also high. हाँ नहीं क्यों बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। when national income is equally distributed, when national income is equally distributed, propensity to consume increases, demand increases. What did I say? What did I say? When national income is distributed equally, propensity to consume increases, propensity to consume increases, demand increases. When national income is distributed unequally, propensity to consume decreases, demand decreases. Are we clear? Point खत्म, डिस्कशन खत्म। समझ में आया सबको? यस। डाउट किसी कुछ पूछना है? डज एनीवन हैव टू आस्क एनीथिंग? नंबर से नंबर्स आपके सामने, सिर्फ देखो उसको समझ लो। किसी कोई डाउट है? यस एंड डाउट? चले गो अहेड। So in case of equal distribution of national income, propensity to consume increases, leading to increase in the demand for the goods and services. As it is कितना है वो? ₹400। यहाँ लिख भी देना तुमने पेन से, कितना है वो? 400 rupees, as we can see in the above example. Unequal distribution of income, propensity to consume decreases, leading to decrease in the demand for goods and services, as it is shown in the above diagram, which is 230 rupees. Are we okay? National income and its distribution, how it determines the demand, है ना? राइट। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। लेट्स से आई वांट टू बाय एन आईफोन 11, नॉर्मल आईफोन 11। नॉर्मल आईफोन 11 की कितनी कीमत है? 60,000 रुपये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रफ अराउंड 60,000, राइट? बट आई एम अ पुअर फेलो, एज यू ऑल नो, only 4,500 रुपये पगार। I can't afford 60,000 rupees in one go. I can't afford paying 60,000 rupees in one go. So I want credit facility. मोबाइल फोन्स का अभी के दौर में मार्केट में सेल बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। और महंगे फोन्स अब हर कोई ले रहा है क्या? पहले महंगा फोन बहुत रेयर, जो अच्छे सेटअप है, जिनकी इनकम कम है अच्छी, ऐसे लोग लेते थे। अब रिक्शा वाला भी बोलता है कि 25-30 हजार का फोन लेना है। वाई डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? क्योंकि वो हर मोबाइल शॉपिंग के बाहर जो बैनर लगाए ना, बजाज फाइनेंस अवेलेबल, 0% EMI, दीज आर नथिंग बट द क्रेडिट फैसिलिटीज वी हैव। मेरे जैसा गरीब आदमी BMW कैसे लेता है? HDFC फाइनेंस, नो कैश ब्रो, आई नो कैश, नो कैश नो चेक, ओनली लोन। हाँ
हाँ हाँ। सो जैसे इसका बोलना है कि सर इंडिया के अंदर ऊपर वाले इसमें पूछना था कि सर इंडिया का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो हमारे यहाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो है, इसलिए डिमांड कम है। अगर हमारे कंपेयर में अगर कोई दूसरा सोशलिस्ट कंट्री है जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहेगा तो उस देश की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट पे हमारे कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। मेरे जैसा गरीब आदमी BMW बाइक के तो ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। सही में। सो मेरे जैसा गरीब आदमी BMW बाइक की उसने तो ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं ख्वाब देखने की सोच भी रहा और मैंने ख्वाब को सच भी कर लिया, इसलिए क्योंकि मेरे पास लोन फैसिलिटी है। क्या है? लोन फैसिलिटी है। तो मैक्सिमम, अरे बाबा तुमको नहीं मालूम रे। सो अब अभी बहुत लोग, अगर आप क्या बोले बेटा? मैं कब बोला ऐसे? डैडी बोले होंगे, मैं तो नहीं बोला ऐसे। चलो ठीक है, वॉट एवर। यस। सो अभी एग्जाम्पल पे ध्यान दो। सो अभी अगर आप देखते हो 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे महंगे महंगे फोन का सेल बढ़ा है मार्केट में। व्हाई डू यू थिंक इट हैज इंक्रीज? बिकॉज इट इज अवेलेबल एट क्रेडिट फैसिलिटी। If you want to buy a 60,000 iPhone, you don't have to pay 60,000 rupees right away. Just make a down payment of 10,000 rupees. Rest remaining 50,000 you can pay in equal installment of 10 months. That is 5,000 along with the interest whatever it may be. ये मालूम है सबको EMI ऑप्शन? अभी तो इतना ज्यादा उसका कंज्यूमर क्रेडिट हो रहा है ना। व्हाट इज कंज्यूमर क्रेडिट? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो क्रेडिट या लोन मिलता है उसे हम कंज्यूमर क्रेडिट कहते हैं। आज से 5 या 10 साल पहले कंज्यूमर क्रेडिट इतना हमारे यहाँ नहीं था। अब हमारे यहाँ यह हाल है कि मॉल में भी अगर आप जाओ और शॉपिंग कर लो, अगर आपका बिल 5,000 भी होता है तो वो बोलते हैं फाइनेंस पे EMI करवा दूं क्या? अगर आप सेंट्रल में शॉपिंग के लिए जाते हो और 5-10 हजार का भी अगर आपका बिल होता है तो इमीडिएटली आज कैश भरोगे, EMI पे कन्वर्ट करवा दूं। पहले बैंक इतने रिलेक्टेंट थे, दे वुड गिव EMI फैसिलिटी ओनली टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। Now on Amazon and most of the website we are getting EMI facilities on debit card also. You have to pay in equal installments. So you don't have to pay one lump sum amount immediately out of your pocket. So if credit facilities, दयामज इधर ध्यान दो, अगर credit facilities अगर consumers को available हो रही है, that to be at low interest rate, what do you think? The overall demand will increase or decrease? It will increase. Yes or no? Agree? और यही अगर मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, सबको 60,000 रुपए पूरे पे करके ही आईफोन लेना है, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी आईफोन की या कम होगी? कम होगी। लेट्स से कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हमारे साहूकार जैसे ध्रुव जैसे कोई बड़े साहूकार है, वो ब्याज लेते हैं साल का 40%, 40% साहूकारी, मोर देन 3% का ब्याज मंथली। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन उसके ऊपर ब्याज रकम बहुत ज्यादा है। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसा लोन कोई लेगा क्या? नॉर्मली कंज्यूमर्स नहीं लेंगे। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, साथ साथ वो लो इंटरेस्ट पे भी अवेलेबल होने चाहिए, तभी जाके आज हर व्यक्ति हाउसिंग लोन लेता है, क्योंकि हाउसिंग लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 8 to 9% पर एनम। पर एनम यानी ईयरली 8 से 9% का ब्याज, वो भी सालाना लगता है हाउसिंग लोन के ऊपर। हमारे यहाँ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। लेट्स से 60,000 का आईफोन आपको लेना है, तो 60,000 रुपए के आईफोन के ऊपर 10,000 रुपए का आपका डाउन पेमेंट है। 10,000 का डाउन पेमेंट जाने के बाद कितना बचा? 50,000, और 50,000 का आपको लोन अप्रूव हुआ है। और लेट्स से इसके ऊपर साल का ब्याज उन्होंने लगाया है 10% का, तो साल का ब्याज कितना हुआ? 5,000। तो 5,000 प्लस 50,000 कितने हुए? 55,000। अगर उन्होंने EMI दिए 12, तो 55,000 डिवाइडेड बाय 12, whatever will be the amount is will be the EMI which you have to pay every month. This is how EMI is calculated. Loan amount plus interest amount divided by number of months multiplied by number of years will give you the EMI. Are you getting my point? मान लो मैंने अभी BMW लोन पे लिए 3 लाख रुपए के, सो 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 3 इयर्स का टेन्योर, 3 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 9%, 9% के हिसाब से 27,000 सालाना,
27, 27, 27. Let's say 30, 30, 30, 90. 3,90,000. 3,90,000 repayment period is 36 months. 3 years. 3 years मतलब 12 multiplied by 3, 36. 3,90,000 divided by 36 months. Whatever will be the amount, that is the EMI which I have to pay next 3 years. इस तरह से EMI का कैलकुलेशन होता है. आर गेटिंग माय पॉइंट? जो रकम होती है, अमाउंट होता है, कमोडिटी का प्राइस होता है, उसमें से डाउन पेमेंट की रकम की कम की जाती है. उसमें से डाउन पेमेंट की रकम कम की जाती है. उसमें से डाउन पेमेंट की रकम कम की जाती है. उसके बाद जितना भी बचता है, उसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है, उस अमाउंट को जब आप लोन के तौर पे लेते हो, उसके ऊपर जो ब्याज लगता है डिवाइडेड बाय द टेन्योर फॉर विच इट इज गिवन, व्हाटएवर अमाउंट कम्स टू इज द ईएमआई विच यू हैव टू पे. तो 60,000 के मोबाइल को अगर 5-5 हजार की किस्त में अगर आपको पेमेंट करना है, अभी के लिए सिर्फ 10,000 भरना है, तो आप 60,000 का चीज लेने की सोचोगे, है या ना? और वही चीज एक साथ 60,000 रुपए देना है, तो पहले अपनी सेविंग्स को चेक करोगे, फिर लेना नहीं लेना सोचोगे. सो there is more demand if there is credit facility available, that to be at low interest rate. So can I say there is increase in demand if there is more credit facility at low interest rate, and there is decrease in demand if there is no credit facility? Is it okay? More credit, more demand, less credit, less demand. More credit at low interest rate, that to be. It has to be at low interest rate. The interest rate cannot be high. Is it okay and fine? समझ में आया पॉइंट? देखो, क्रेडिट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है और इंटरेस्ट रेट अगर हाई है, तो हम ऐसे साहूकार के पास से पैसे लेंगे क्या? नहीं लेंगे. तो डिमांड क्या होगी? लो होगी. अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, बजाज फाइनेंस, and the rate of interest is low, let's say less than 10% per annum, so will there be increase in demand? Yes. Will there be increase in demand? Yes. क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होना एक पॉइंट है. उसके साथ साथ उस क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर लोन कितना लगता है ये भी देखना पड़ेगा. सर ब्याज कितना लगता है ये भी देखना पड़ेगा. अगर ब्याज ज्यादा लगता है तो हम क्रेडिट फैसिलिटी नहीं लेते. अगर ब्याज कम लगता है तो हम लोन फैसिलिटी लेकर चीजें खरीदते हैं. नॉर्मली अभी जितने भी मार्केट में कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज है, उन सभी चीजों के ऊपर आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. हर चीज पे फाइनेंस हो रहा है. आपको कपड़ों के ऊपर होने लगा है, तो बाकी क्या चीज है, राइट? कपड़ों के ऊपर आप सेंट्रल में जाके कपड़े खरीदो, कपड़ों के ऊपर भी ईएमआई हो जा रहा है अभी. सो दिस इज हाउ द कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एट लो इंटरेस्ट इज बीइंग अवेलेबल. सो इससे क्या होता है, मुझे मालूम है कि मैं 10,000 रुपए की खरीदी करता हूं, तो मुझे हर महीने 2-2 हजार रुपए ही पे करना है. सो आई गो टू द मॉल एंड बाई कपड़े ऑफ 10,000 रुपीज, और वही मुझे मालूम होता है कि एक साथ 10,000 रुपए देने हैं, तो मैं 2-3 हजार के ही कपड़े लूंगा जितने मेरे जेब में. इमीडिएटली ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्रेडिट का ऑप्शन मिल रहा है, लो इंटरेस्ट है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड ज्यादा कर रहे हैं. आई गेटिंग माय पॉइंट? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. नाउ ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. ये कैलकुलेशन है कैसे ईएमआई आता है, राइट? सैमसंग का 1,000 रुपए का फोन है, जिसके ऊपर 1,000 रुपए की इसमें ईएमआई लगाया हमने. 18% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसके हिसाब से पूरा अमाउंट कितना हुआ? 1180 डिवाइडेड बाय 10. 1180 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना? 118. सो आई विल रीपे 18 ईएमआई ऑफ 118 रुपीज पर मंथ, राइट? अल्टीमेटली 10 महीने बाद में पूरा कितना पे करूंगा? 1,000 रुपीज प्लस 180 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट. इज इट ओके एंड फाइन? यस और नो? ये इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स है, आप देख लेना. डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? सो क्रेडिट फैसिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया? सो हियर वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. इज इट ओके एंड फाइन? अगला पॉइंट है डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड. ये दोनों भी आज हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं, राइट? थोड़ा पानी देना यार. यस, कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर अहेड. देखिए, इन सभी पॉइंट्स के अंदर एक पॉइंट यहाँ पे प्रिंट करने में रह चुका है, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, द गवर्नमेंट पॉलिसी मे बी आइदर ए favorable or B unfavorable. Favorable or unfavorable. So how does a government policy and regulation affect the demand for a commodity?
यू नो वेरियस कमोडिटीज विच आर इंजurious टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोगों का चालू रहता है. Then right, okay, so let's take example of cigarettes or alcohol. Now they are injurious to health but still people want to consume them. ये ऐसी चीज है जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है. So what do you think? For such kind of commodities which are not good for human health, which are not ethically correct, एथिकली करेक्ट, सोसाइटी के एथिक्स के हिसाब से सही नहीं है, ऐसे कमोडिटी की अगर हम बात करें, विल दे हैव फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी और विल दे हैव अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी? क्या हमारी गवर्नमेंट अल्कोहल और सिगरेट को प्रमोट करेगी? नो, दे विल डिस्करेज, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी विल हैव? विल हैव अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी. सो व्हेनेवर देयर इज अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, व्हाट हैपेंस? देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज बीइंग लीव्ड. ताकि चीजें इतनी महंगी कर दो कोई लेने का सोचे नहीं. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. एक जमाने की 1-2 रुपए की सिगरेट आज 15 रुपए मिलने लगे, फिर भी कहीं से भी जुगाड़ करते हैं. पीने वाले का खतरनाक रहता हो. किसको पूछने का अभी यहाँ पे? अच्छा, गाय छाप. गाय छाप, you don't know गाय छाप? AD, I'll tell you, wait. गाय छाप, that is जड़ी बूटी. So these are all, it's a local brand for tobacco, pure tobacco. So these are commodities which are not favored by the government. So there is huge amount of tax which is being levied. Tobacco and tobacco products have a tax of around 200%. इतना बड़ा टैक्स इन चीजों के ऊपर लगाया जाता है. सो चीजें महंगी होती है वो बात अलग है. जैसे मैंने कहा कि भाई जो पीने वाला होता है वो कहीं से भी जुगाड़ कर लेता है. अपने पास नहीं हो तो किसी के लेके जाएगा, लेकिन पिएगा जरूर, राइट? और किसी से भी नहीं मिल रहे तो कोई पीता रहा तो उसको एक कश, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी विच मे बी आइदर फेवरेबल और आइदर मे बी अनफेवरेबल. So whenever we have favorable policies, that means tax is low. Let's say I am producing आटा, चक्की का आटा, रोटी बनाने के लिए जो आटा, गेहूं का आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं, राइट? आशीर्वाद, राइट? आशीर्वाद आटा है. अब आटा जो है ये हर व्यक्ति की, कॉमनर की जरूरत की चीज है. सो ऐसी चीज में अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो बेसिक नेसेसिटीज है. जैसे अभी कोविड के सिचुएशन में मास्क है, सैनिटाइजर है. तो कोविड के सिचुएशन में जहां पे मास्क और सैनिटाइजर इतने इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ सैनिटाइजर्स एंड मास्क, विल इट बी फेवरेबल और विल इट बी अनफेवरेबल? इट विल बी फेवरेबल. सो द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट विल बी चार्ज्ड ऑन मास्क एंड सैनिटाइजर इज लो. रिसेंटली गवर्नमेंट has announced कि जो मास्क प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा. जब शुरुआत में मास्क की शॉर्टेज चल रही थी तब तो टैक्स नहीं लगता है तो चीज सस्ती मिलती है मार्केट में, और टैक्स लगने लगता है तो चीज महंगी मिलती है. टोबैको एंड कमोडिटीज के ऊपर अनफेवरेबल पॉलिसी है. सो कैन आई से अनफेवरेबल पॉलिसी लीड्स टू मोर टैक्सेशन लीडिंग टू मोर प्राइसिंग ऑफ द गुड्स लीडिंग टू लेस डिमांड, whereas a favorable policy can be understood as a policy where there will be less tax, there will be less prices of the goods and there will be more demand of the goods. है ना? अनफेवरेबल पॉलिसी है तो टैक्स ज्यादा है तो चीज महंगी होती है. चीज महंगी हो जाती है तो क्या होता है? डिमांड कम होती है. सो कैन आई से अनफेवरेबल पॉलिसी लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड? यस और नो? And a favorable policy leads to increase in demand. Agree? So this point is also completed. Are we okay? Are we okay now? किरण, चलो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं.
डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है डिमांड फंक्शन, राइट। डिमांड फंक्शन की तरफ बढ़ने से पहले एक थोड़ा बहुत ब्रशिंग हम अपने मैथ्स पे करते हैं। आई एम नॉट द राइट टीचर दो, भक्ति मैम इज, बट स्टिल लेट मी ट्राई। आपने मैथ्स में अब तक स्कूल में कहीं तो देखा होगा, कहीं लिखा हुआ या लिखा भी होगा आपने, x इज फंक्शन ऑफ y, ऐसा लिखा कहीं पे? सो x इज फंक्शन ऑफ y, हाउ डू वी राइट इट? x इक्वल टू f इंटू ब्रैकेट y, that means x is a function of y. Now there are two variables in the given particular equation. One is x, another is y. There are two variables x and y. So whenever we write a function, one is dependent variable, another is independent variable. X is a function of y. So x is dependent on y. So what is x? X is a dependent variable. X is a dependent variable. What is y? Y is a independent variable which is not dependent on x, because x is function of y. Y is not function of x. Yes or no? Right? Understood? So हमारे equation में x is a function of y, where x is a dependent variable and y is a independent variable. यहां तक सबको क्लियर है? हाँ या ना? Now demand is dependent on determinants of demand. Yes or no? Demand is dependent on, so dependent variable क्या हुआ हमारा? Demand. So x की जगह हमने क्या लिख दिया? Demand. क्या लिख दिया हमने? Demand. X is a function of y. So the dependent variable is dependent on the independent variable, that is y. Now a dependent variable is demand, and you all know, we have seen in all the points till now, demand is dependent on determinants of demand. Agree? Demand is dependent on determinants of demand. जितने भी हमने ऊपर सारे determinants देखे थे, इन सभी determinants के बाद हम determine करते हैं demand for the commodity. Yeah, all these determinants of the demand determine the demand for a commodity. Yes or no? Agree? So can I say the independent variable here y is nothing but the determinants of demand. So demand function is nothing but demand is the function of determinants of demand. तो हमने क्या किया? x की जगह पे क्या लिख दिया? डिमांड, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह पे क्या लिख दिया? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो व्हाट इक्वेशन वी डिड वी राइट? डिमांड इज फंक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. हाँ या ना? तो इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिया, डिमांड इज फंक्शन ऑफ P, प्राइस फॉर द कमोडिटी, I, इनकम ऑफ कंज्यूमर, PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, TP, TP इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, C is consumer expectations, A is advertisement. So demand is function of other factors, advertisement, whatever, but they have given advertisement well and okay. Need not to write other factors, they have given advertisement. So demand is function of determinants of demand. So यहाँ पे demand function का discussion खत्म. So what is demand function? Demand function is nothing but where demand dependent variable is dependent on the independent variable, that is determinant of demand. Hence demand for a commodity is determined by the determinants of demand. Are we clear? Yes or no? Yes or no? Right? Where D is the demand, which is a dependent variable, P is the price of the product, which are independent variable, income of consumer, price of related good, taste and preference, consumer expectation and advertisement. So these are all the determinants of demand. So they are Y variable, which are the independent demand. Are we clear with demand function? समझ में आया सबको? Moving on to the next heading, the law of demand. क्या बोलते हैं इसको हम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. जो बच्चा ट्यूशन लगाता है और जब 12th की एग्जाम आती है तो एक ही बोलता है, सर कुछ भी बोलो,
एक आधा गेस बोलो ना पेपर में जो फिक्स आएगा, ऐसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, सर कुछ तो ऐसा क्वेश्चन बताओ जो फिक्स एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आएगा, फिक्स आएगा, फाइनल एग्जाम में फिक्स पक्का आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन तो हमको बताओ। बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, जानना है? आपका 12th का पेपर 80 मार्क का है, 8 मार्क दूं तुम्हें? 8 मार्क दूं अभी? फिर बचते कितने हैं? 72। कितने देने फिर? 72 बचते हैं। 8 मार्क का क्वेश्चन, फिक्स स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, आइदर एक्सप्लेन एक्सेप्शंस और आइदर एक्सप्लेन अजम्पशंस, कंपल्सरी क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड कंपल्सरी क्वेश्चन 12वीं कक्षा में आपको होगा, 8 मार्क के लिए। डिटेल आंसर पेपर फॉर्मेट दिया आपको मैंने इकोनॉमिक्स का, पेपर फॉर्मेट, राइट एनी वन लास्ट में, उस एनी वन में अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन के आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपके फाइनल एग्जाम में। मैं आपको एक 6 क्वेश्चन निकाल के दूंगा 12th स्टैंडर्ड में, उन 6 क्वेश्चन में से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आंसर इन डिटेल में है, 2 क्वेश्चन है ना, एनी 1 आउट ऑफ 2, तो 6 में से ही 2 आएंगे, उसके बाहर क्वेश्चन भी नहीं बनता। तो उन 6 में से एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स असम्पशंस और एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शंस। इज इट ओके? तो बड़े बारीकी से ध्यान रख के कंसेप्ट पढ़ना है। इसके ऊपर 4 मार्क के एमसीक्यूज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीए फाउंडेशन में, 3 से 4 मार्क के लिए, यानी कि 10% एमसीक्यू इसके ऊपर रहेंगे, अराउंड रफ अराउंड 8 to 10%. Okay, so the next concept is law of demand. Now we have understood what is demand, we have understood how demand is expressed, how demand is constituted, how demand is determined by the various factors. Lastly, we understood what is demand function. Now let's move on to the very next and important heading of this particular part of the theory of demand of this chapter, that is law of demand. In economics, especially in the microeconomics, my dear friends, we will be learning different laws. आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड सिखाऊंगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिखाऊंगा, लॉ ऑफ सप्लाई सिखाऊंगा, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिखाया जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स में लॉज है, वो सारे लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। उन सभी लॉ के अंदर जो पहला लॉ आज हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ डिमांड। किसी भी लॉ को कैसे पढ़ा जाता है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है, यानी इस स्टेटमेंट से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह लॉ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट we will be trying to understand a schedule based on the statement. जो 12th वाले हैं उनको समझ में आता होगा, will be understanding a schedule. Schedule is nothing but an example which will be given in the tabular form, which will be based on the statement. जो हमने स्टेटमेंट लॉ में देखा है, जो लॉ का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पे आधारित एक एग्जाम्पल रहेगा जो टेबुलर फॉर्म में, स्केड्यूल के फॉर्मेट में हमें दिया गया होगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे, स्टेटमेंट समझने के बाद हम समझेंगे स्केड्यूल। स्केड्यूल इज नथिंग बट टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे अभी आप मैथ्स पार्ट 2 में कर रहे हो, हम सारे डेटा को टेबल फॉर्म में करते हैं, अरेंज करते हैं, so that is nothing but tabular presentation of data, which is nothing but schedule, right? और फिर बाद में हम देखेंगे डायग्राम। हम लास्टली क्या देखेंगे? डायग्राम। लास्टली व्हाट विल लुक इनटू? डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर हम जो स्केड्यूल हम समझे हैं, उस स्केड्यूल के बेसिस पे हम कर्व निकालेंगे। ग्राफ मालूम है स्कूल में मुंदुला जी, ग्राफ। अब उस स्केड्यूल के बिहाफ पे, टेबल के हिसाब से हम ग्राफ निकालेंगे और उस ग्राफ को जोड़ के हमें मिलेगा कर्व, जो बताएगा इस लॉ के मुताबिक उस पर्टिकुलर टर्म का ग्राफ या कर्व कैसे बनता है। सो हर एक लॉ के अंदर ये 3 चीजों का पढ़ना हमें कंपल्सन है माइक्रो के 3 लॉ में, जहां पे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, स्केड्यूल एंड डायग्राम। इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को पढ़ा जाता है। इज इट ओके? तो चलिए आज पहला मैं लॉ पढ़ा देता हूं, फिर बाद में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्टेटमेंट यानी क्या, स्केड्यूल यानी क्या और डायग्राम यानी क्या।
So let's start with the law of demand. My dear friends, the statement of the law. Before moving on to the statement of law, let me tell you one thing, that maximum or major laws which we read or learn under microeconomics are given by Dr. Professor Alfred Marshall. They are given by Professor Alfred Marshall. So the law of demand is also given by Dr. Professor Alfred Marshall. Professor Alfred Marshall can be truly called as the father of microeconomics, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा लॉ, सबसे ज्यादा थ्योरीज किसने दिए थे? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिए. सो दिस लॉ इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. द लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. सो व्हाट ही स्टेटेड इन द स्टेटमेंट, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने स्टेटमेंट में क्या दिया है? जब कभी भी लॉ बनता है, कैसा बनता है? कोई एक इकोनॉमिस्ट या थ्योरिस्ट होता है, वो कोई चीज को ऑब्जर्व करता है. वो कोई चीज को ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखने की कोशिश करता है कि वो जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है, डज इट अप्लाई यूनिवर्सली? व्हाट इज लॉ? व्हेनेवर वी से लॉ ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी से? कि ऊपर से जो देश, हमारा जो अर्थ का जो कुछ भी एटमॉस्फेयर अंदर है, देयर इज लॉट ऑफ ग्रेविटी इन इट, राइट? किसने बनाई लॉ ऑफ ग्रेविटी? न्यूटन ने. न्यूटन क्या बोला कि जब मैं एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था तो एक एप्पल टूट गया, उसी तो मेरे सर पर आके गिरा, राइट? नाउ दिस इज हैपनिंग ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स. नाउ व्हाटएवर लॉ ऑफ ग्रेविटी ही गिव, डज इट अप्लाई यूनिवर्सली अक्रॉस द ग्लोब? यस और नो? हर जगह पे ग्रेविटी अप्लाई होती है क्या? विश्व के हर पार्ट में? सो एक बात हमें समझनी है कि जो भी लॉ होगा, जो भी लॉ होगा, दैट हैज टू अप्लाई यूनिवर्सली, दैट हैज टू अप्लाई यूनिवर्सली. सब जगह एक जैसा लॉ अप्लाई होना चाहिए. तो मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, मैं कोई चीज ऑब्जर्व करता हूं, आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग. अब ऑब्जर्व करते वक्त मुझे कुछ दिखाई देता है. अब दिखाई देने के बाद मैं उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन करने की कोशिश करता हूं. अगर वो यूनिवर्सली हर जगह, हर देश, हर गांव में एक जैसा अगर अप्लाई होने लगा तो उसे हम बना देंगे एक लॉ. तो डॉक्टर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ चीज देखी और देखने के बाद उसको समझा, उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर बहुत से एग्जाम्पल्स लिए और फिर बाद में ये कंक्लूजन पे आए कि ये चीज यूनिवर्सली सब जगह पे अप्लाई होती है, तब जाके उन्होंने बनाया है लॉ. उन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए, उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ डिमांड. सो व्हाट इज स्टेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? लेट्स लुक इनटू. बहुत इजी है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एवरीथिंग यू नो अबाउट द लॉ. सिर्फ इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में आपने को पढ़ना है. यहाँ पे मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं. जो आपको डे 1 में मैंने पढ़ा था उसी का रिपीटेशन है, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लॉ के स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपने को समझना है. इज इट ओके? सो इन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, in the statement of law of demand, we will get to know that Professor Alfred Marshall has considered two variables. He has considered two variables for constituting or making the law of demand. The two variables being, first variable being the price of the commodity. The first variable being price of the commodity and the second variable being quantity demanded. And he is trying to set up the relationship between price of the commodity and quantity demanded. We have already learned in determinants of demand, yes, that how is the relationship between price of the commodity and its quantity demanded? Inverse. That is, when price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Do you think this law will apply universally? Yes. This has to apply universally. अगर किसी केस में अगर ये अप्लाई नहीं होता तो वो जो कौन से केसेस है जहां पे लॉ अप्लाई नहीं होता वो हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में. इस तरह से एक्सेप्शंस बनते हैं लॉ के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब कभी भी कोई लॉ यूनिवर्सली अप्लाई होता है, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर वो अप्लाई नहीं होता, देन वी कॉल इट एज एक्सेप्शंस. तो हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ऐसे कौन से सिनेरियो है जहां पे प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम नहीं होती है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है. तो जो हमने सीखा उसका उल्टा हो रहा है. सो दिस विल बी लर्निंग इन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में हम दो वेरिएबल सीखने वाले हैं. लॉ ऑफ डिमांड में हम दो वेरिएबल सीखने वाले हैं. व्हाट आर द टू वेरिएबल्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न? व्हाट आर टू वेरिएबल्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न?
price of the commodity and quantity demanded. How is the relationship? When the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. There is a inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. Agree? Agree everyone? Yes. यही चीज इस लॉ में दी गई है, सिर्फ इसको लॉ के फॉर्मेट में सिस्टमेटिकली दिया गया है, नया कुछ भी नहीं, पूरा यही चीज का हमें फॉलोअप लेना है. ठीक है, चलिए. नाउ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, ceteris paribus. What is the word? Ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus का मतलब होता है other things remaining same and constant. What do you mean by the word ceteris paribus? Other things remaining same and constant. What do you mean by ceteris paribus? Other things remaining same and constant. So my question to Ajmera ji is, whenever we see determinants of demand, is price of the commodity only determinant which determines the demand? अभी मैंने कल determinants of demand पढ़ा है, उसमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ा है, उसमें एक पॉइंट था प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक अकेला सा डिटरमिनेंट है क्या जो डिमांड को डिटरमाइन करता है? नहीं, और भी डिटरमिनेंट्स है. प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? देयर आर सेवरल अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. So ceteris paribus is the assumption which is made right away before starting the law. Ceteris paribus का मतलब होता है other things remaining same and constant. What do you mean by ceteris paribus? Other things remaining same and constant. Now what we are trying to put in other things remaining same and constant? We all know price of the commodity is not only the variable. हमारे इस लॉ ऑफ डिमांड में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल दो वेरिएबल्स का कंसीडरेशन ले रहे हैं. एक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड. अग्री? लेकिन सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या वो डिटरमाइन करता है डिमांड? नहीं. देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स ऑल्सो. अग्री? देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स. लेट्स फॉर अ टाइम कंसिडर कि द प्राइस ऑफ शर्ट हैज रिड्यूस्ड. The price of a shirt has reduced. So what should happen to demand of the shirt? It should increase. The price of the shirt have reduced, so there should be an increase in the demand. The price of the shirt has reduced, so there should be an increase in the demand for the shirts. But let's say the shirt जिसके जो दाम कम हुए हैं, जिन शर्ट जिसके दाम कम हुए हैं वो ब्लैक कलर के शर्ट है सब, और ब्लैक कलर हम में से किसी को भी पसंद नहीं. सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है सभी का, तो क्या हम ब्लैक शर्ट का डिमांड करेंगे? नहीं. भले ही दाम कम हुआ है तो भी उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से हमें ब्लैक कलर पसंद ही नहीं है. सो कैन वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ओनली वेरिएबल प्राइस ऑन द डिमांड? फॉर दैट व्हाट हैज टू हैपन? आवर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट. व्हाट हैज टू हैपन? आवर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट. Yes or no? अगर हम टेस्ट और प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो ही प्राइस के बदलने की वजह से जो डिमांड के ऊपर का इफेक्ट है वो समझ सकेंगे. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एज आई सेड, द प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस. व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर टी? व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ टी? इट विल डिक्रीज. इट विल डिक्रीज. नाउ इफ द प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस, demand for tea is decreasing. Even if the prices of tea are not decreasing, they are constant. And if the prices of coffee reduces, will there be decrease in the demand of tea? Yes. क्योंकि कॉफी सस्ती हो रही तो लोग सब्सटीट्यूट की तरफ जाना शुरू करेंगे. समझ में आ रहा है? तो हमें टी के बदलते प्राइस की वजह से टी के डिमांड पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये अगर समझना है तो बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है जो टी की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं वो सब क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, ceteris paribus का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट. जहां पर हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है. दे डोंट चेंज, ऐसा हम अजम्पशन कर रहे हैं.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ ऑफ डिमांड में सिटरिस पेरिबस लगा दिया है, इसका मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट, इसका मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल बी कांस्टेंट, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स विल बी कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल बी कांस्टेंट। चीजें महंगी हो गई थोड़ी, लेकिन इनकम उसकी डबल हो गई, फर्क पड़ता क्या उसको? नहीं फर्क पड़ता। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा क्या वहां पे? अगर 10 रुपए की चीज 15 रुपए हो गई, 10 रुपए की चीज 15 रुपए हो गई, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कम होनी चाहिए, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति की इनकम 10,000 से 1 लाख रुपए हो गई, तो 10 रुपए की चीज 15 रुपए में हो गई, तो उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। बदलते प्राइस के ऊपर का फर्क कब पड़ेगा? जब उसकी इनकम कांस्टेंट रहेगी तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिख के रख लो, सिटरिस पेरिबस का मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट। राइट इट समवेयर। सिटरिस पेरिबस मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट। एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू अज्यूम कांस्टेंट? प्राइस छोड़कर जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, वी आर अज्यूमिंग दैट ईच एंड एवरी डिटरमिनेंट इज कांस्टेंट। अभी ओके? So according to the law of demand, ceteris paribus as the price अब ceteris paribus का मतलब क्या है? Other things remaining same and constant. Done, written. चलिए please pay attention. चला भारी लक्ष्य द्या. According to the law of demand, ceteris paribus, other things remaining same and constant. Other things remaining same and constant. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट का मतलब है बाकी सारे वेरिएबल सेम है और कांस्टेंट है। अब मुद्दा समझने की कोशिश करिए, आगे क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, सिटरिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, एंड एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, demand for the product increases. What is also given in the statement by Professor Alfred Marshall? Professor Alfred Marshall ने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में? What has Professor Alfred Marshall said? Professor Alfred Marshall defined the law of demand as the greater the amount to be sold, the greater the amount to be sold, the greater the amount to be sold, the smaller must be the price. यानी जितनी ज्यादा डिमांड अगर रखनी है तो उसके लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा? स्मॉल रखना पड़ेगा। यानी कम प्राइस रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा। इट इज ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट मे बी फाइंड परचेजर्स, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस। अल्टीमेटली व्हाट इज अल्फ्रेड मार्शल ट्राइंग टू से? द सेम थिंग। व्हाट? दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट में मैंने दिया है फिर से, जो ऊपर अल्फ्रेड मार्शल अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। The greater the amount to be sold, the smaller must be the price at which it is being offered to find the purchaser. That means as the price of the product increases, demand for the product decreases. As the price for the product decreases, demand for the product increases. As the price increases, demand decreases. The price decreases, demand increases. So what is Professor Alfred Marshall trying to state in his law of demand? That there is inverse relationship between price of the product and its quantity demanded. Yes or no? Hi na? In the law of demand, there are two variables, that is price of the product and quantity demanded. Other determinants assumed to be constant. Ceteris paribus, right? So as per law of demand, अगर हमें summarize करना है तो क्या? As the price increases, demand decreases. As the price decreases, demand increases. Hence, there is inverse relationship between price of the product and its quantity demanded as per law of demand. Now, universally ये law apply होता है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, जहां दाम कम हुए वहां डिमांड बढ़ेगी, और जहां दाम बढ़ गए वहां डिमांड कम हो जाएगी। सो दिस इज द सेम थिंग विच विल बी हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा कहीं होगा क्या चीजें महंगी हो गई अमेरिका में तो वहां डिमांड ज्यादा कर रहे हैं? नहीं। सिटरिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट, नहीं ना। तो ये लॉ यूनिवर्सली अप्लाई होगा क्या? यस। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट अगर हम अज्यूम करते हैं तो यूनिवर्सली ये लॉ अप्लाई होता है। यूनिवर्सली ये लॉ अप्लाई होता है where the price increases, demand decreases, where the price decreases, demand increases. Agree? This is what we have in the law of demand, which you have already learned. इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिर्फ इसको सिस्टमैटिकली फॉर्मेट में अपने लिखा है। जब आपको 12th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड आएगा तो आपको इसी तरीके से एज इट इज जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखना है।
जब 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको ही लिखना है आपको एज इट इज. देन वी हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट. जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिया उसी को थोड़ा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इन डायग्राम फॉर्म. सो हम पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट. अब हम समझेंगे स्केड्यूल. स्केड्यूल का मतलब होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जब कभी डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में डिपिक्ट करते हैं इट इज कॉल्ड एज स्केड्यूल. सो अब लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर हमें एक स्केड्यूल समझना है, एक टेबल समझना है, राइट, जिसके आधार पे हम आगे हमारा डायग्राम या डिमांड कर्व बना सकते हैं. डिमांड कर्व बनाने से पहले हमें एक एग्जाम्पल लगेगा जिसके बिहाफ पे हम एक स्केड्यूल बनाएंगे. फिर उस स्केड्यूल को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में कर्व बनाएंगे और जो कर्व आएगा वो हमारा क्या होगा? डिमांड कर्व. क्या बनेगा हमारा? डिमांड कर्व. डिमांड कर्व आने से पहले स्केड्यूल को समझते हैं. स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ समझ गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट समझ गया. सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? आयुष, यस एनी डाउट? एनी डाउट? अब बात आती है स्केड्यूल की. टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्केड्यूल. नाउ कम टू अ रियलिस्टिक एग्जांपल. Mr. Dinesh, a poor household. Mr. Dinesh, a poor household purchases different quantities of wheat at different prices as follows. पहला प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड. So when the price is 5, demand is 10. When the price is 4, demand is 15. When the price is 3, demand is 20. When the price is 2, demand is 25. When the price is 1, demand is 30. ध्यान दो, तो अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी दी गई है. 5, 4, 3, 2, 1 आर द डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन. अब इस डेटा को हम टेबल फॉर्मेट में बताते हैं, डिपिक्ट करेंगे तो कैसा बनेगा हमारा टेबल? कुछ इस तरह. है ना? देयर आर डिफरेंट सिचुएशन, सिचुएशन ए बी सी डी ई. हर एक सिचुएशन का प्राइस हमने लिख दिया 5, 4, 3, 2, 1 और हर एक जगह उसके सामने की हमने डिमांड लिख दी 10, 15, 20, 25, 30. नाउ अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्केड्यूल. अब ये स्केड्यूल हमने लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बनाया है, जिसे ऑब्जर्व करके तुम एक चीज समझ सकते हो. क्या दिख रहा है तुम्हें? इफ यू ऑब्जर्व द स्केड्यूल, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? That the price is decreasing from 5, 4, 3, 2, 1. Yo, the price is decreasing. What is happening to demand? It is increasing. As the price is decreasing, demand is decreasing or increasing? Increasing. As the price decreases from 5 to 1, demand increases from 10 to 30. So are we following law of demand? Yes. What does the law of demand says? As the price decreases, demand increases. अभी हमारे गिवन एग्जांपल में प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है. As the price is decreasing from 5 to 1, the demand is increasing from 10 to 30. हमने लॉ समझा, उस लॉ के आधार पे एक एग्जांपल बनाया, उस एग्जांपल के हिसाब से हमने एक स्केड्यूल बना लिया. समझ में आया? अब हमें लिखना पड़ेगा स्केड्यूल का एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन आपको एमसीक्यू पेपर में तो नहीं आने, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में सिर्फ लॉ पता रहना है आपको, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू छुड़ाना है. सो ये जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल, स्टेटमेंट ऑफ लॉ. अब सब्जेक्टिव पेपर तो आपका सीए फाउंडेशन का है नहीं, वहां पे तो सीधा सीधा एमसीक्यू करना है आपको. लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में जब आपको पेपर लिखना है दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सब्जेक्टिव. तो वहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क के लिए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, you will have to write the statement explanation, you will have to write the schedule as I have written, again you will have to write the explanation of schedule. सब कुछ कॉपी पेस्ट, कुछ भी मन का नहीं करना है, बहुत इजी है. अब एक्सप्लेनेशन ऑफ स्केड्यूल, ये जो स्केड्यूल हमने बनाया है इसको हमें एक्सप्लेन करना है. As shown in the above schedule or table, when price is 5, quantity demanded is 10. तो अभी क्या करो, जो ऊपर दिख रहा है उसको सिर्फ सेंटेंस में लिख दो. When the price is 5, demand is 10. When the price is 4, demand is 15. When the price is 3, demand is 20. When the price is 2, demand is 25. When the price is 1, demand is 30.
So we can observe from the above schedule, as the price decreases from 5 to 1, the demand is increasing from 10 to 30. Hence, we can conclude that there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. Hi, na? Okay, nice. Right? So, when the price is 1, the demand is 30. Hence, as per the schedule, when the price decreases, not increases, as the price decreases, demand increases. Yes or no? Hi, na? Hi, na? So, are we following the law of demand? Is there inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded? Yes. यहाँ पे schedule, explanation of schedule खत्म. Is explanation difficult? Is statement difficult? Is explanation of statement difficult? No. Already 8 मार्क आ गए 12वीं के. 12th के 8 मार्क तो आ गए. पार्टी दो अब चलो. अब लास्ट पार्ट बनता है किसी भी लॉ का, जो बनता है डायग्राम. मैंने आपको बताया 3 पार्ट में अपने को लॉ समझना है. एक है स्टेटमेंट, दूसरा है स्केड्यूल, तीसरा है डायग्राम. एक है स्टेटमेंट, दूसरा है स्केड्यूल, तीसरा है डायग्राम. वो मोबाइल एक तो अंदर रखना, मैं यहां से वो गोडाउन पे फेंक दूंगा उधर. पहला है स्टेटमेंट, दूसरा है स्केड्यूल, तीसरा है डायग्राम. स्टेटमेंट हो गया, स्केड्यूल हो गया. अब आते हैं डायग्राम की ओर. अब ये जो टेबल ऊपर हमने लिखा है, इस टेबल के ऊपर आधारित हमें एक डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है. यू नो ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट पॉइंट, देन ड्रॉ ग्राफ. यू नो, डोंट नो, वेट आई शो यू. सो वी हैव अ ग्राफ हियर, जहां पर एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांडेड. वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो अब हमने क्या किया है, ए बी सी डी ई, ये जो सिचुएशन है, इन सभी सिचुएशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है. राइट. व्हेन द प्राइस इज 5, डिमांड इज 10 एज पर ए पॉइंट. यस और नो, अग्री? राइट. फिर उसके बाद ये भाऊ दो मिनट. तो जब बी है, जब प्राइस, लक्ष्य दे, जब प्राइस 5 to 4 आता है, when the price moves from 5 to 4, what is happening to demand? Demand is increasing from 10 to 20. so जब बी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, तो हमारा प्राइस है 4, ये है 15. देखो ऊपर टेबल के हिसाब से चल रहा होगा, मैं 4 15. इस हिसाब से पॉइंट नंबर सी का प्लॉटिंग किया है, पॉइंट नंबर डी का प्लॉटिंग किया है, पॉइंट नंबर ई का प्लॉटिंग किया है. अग्री? एक्सेप्टेड? राइट. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ कर्व adjoining all the points or points which I have plotted. तो ग्राफ के ऊपर जो भी पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं, इनको ज्वाइन करके मैं एक कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं. So this is the curve. Yes or no? This curve which we have plotted on the basis of the schedule which we have is called as DD demand curve. इसका नाम क्या दिया हमने, DD. क्या नाम दिया इसके हमने, DD. और ये क्या है हमारी डिमांड कर्व. क्या है हमारा बेटा, डिमांड कर्व. क्या है हमारी डिमांड कर्व. क्या है हमारी डिमांड कर्व. अब मुझे बताओ, इस डिमांड कर्व को गौर से देखो, गौर से देखो, इस डिमांड कर्व को गौर से देखो. हाउ इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट
to right, right? Hi Anna. Downward sloping from left to right. So what can I conclude from the above diagram? What can I conclude from the above diagram? That demand curve, demand curve, as per law of demand, the demand curve is downward sloping from left to right. जब डाउनवर्ड स्लोपिंग कोई कर्व होती है तो उसका स्लोप नेगेटिव माना जाता है. क्या माना जाता है? नेगेटिव. क्या माना जाता है? नेगेटिव. अब यहां पे मैं आपको कुछ थंब रूल सिखा रहा हूं जिसको आपको कभी भी नहीं भूलना है. प्लीज पे अटेंशन. इंपॉर्टेंट थंब रूल. जब कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जब कभी भी दो वेरिएबल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं अगर उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, हमेशा उन वेरिएबल्स को यूज करके अगर हम कोई प्रॉब्लम बनाते हैं, कोई एग्जाम्पल बनाते हैं और उसका अगर हम कर्व बनाते हैं तो कंपलसरी उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा. लेकिन अगर दो वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो ऐसे वेरिएबल की कर्व कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होती. उसकी कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगी. क्या होगी? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग. अगर इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल के बीच में तो उनका कर्व कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग. लेकिन अगर दोनों वेरिएबल के अंदर अगर डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो उनका कर्व कैसे बनेगा? Upward sloping. Are we fine? Don't have to write. I have already given in the particular notes also. Right? Now let's try to explain the diagram. Now let's try to understand the explanation of the diagram. Already तुम्हें पता है कि as the prices are reducing from 5 to 1, the demand is increasing from 10 to 20. As we plot all the situation on the graph and we try to draw the demand curve which is DD, the demand curve looks downward sloping from left to right. Hence the demand curve has a negative slope. Hence the demand curve has a negative slope. That is all in the explanation given. Right? In the above given diagram, x-axis denotes the quantity demanded. Explanation में हर चीज लिखेंगे हम diagram में. x-axis पे क्या है, y-axis पे क्या है, सब चीजें. x-axis denotes quantity demanded, whereas y-axis denotes price of the commodity. The points A, B, C, D, E depict the different quantities of wheat demanded at the different prices. Yes or no? 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग जो भी डिमांड है वो सभी इन सिचुएशन में डिपिक्ट की जाती है. DD इज द डिमांड का विच वी हैव ड्रॉन. अग्री? DD का कोई फुल फॉर्म नहीं बेटा, उसका नाम DD दिया गया है. राइट? DD इज द डिमांड कर्व. DD क्योंकि कर्व के हम दोनों साइड नाम लिखते हैं, एक साइड नाम लिखते हैं हम नहीं. वी हैव टू राइट नेम्स ऑन द बोथ साइडेड ऑफ द कर्व. सो द नेम इज गिवन DD. राइट? नेक्स्ट, the demand curve is downward sloping from left to right. This also agreed. समझ में आया? Right? The demand curve has a negative slope. क्योंकि वो downward sloping है इसलिए उसका slope कैसा माना जाता है? Negative. The negative slope of the demand curve is due to inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. So what is the thumb rule? Rule box. Inverse relationship, negative slope, downward sloping curve. Downward sloping curve, direct positive relationship, positive slope, that will be a upward sloping curve. Yes or no? Agree? समझ में आया थंब रूल? हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड खत्म होता है. So what did we learn in the law of demand? The law of demand is given by Professor Alfred Marshall, who states the relationship between price of the commodity and quantity demanded. Ceteris paribus, other things remaining same and constant. As per the law of demand, when the price of the product increases, demand for the product decreases. When the price of the product decreases, demand for the product increases. Hence, there is inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. When we see the schedule, we see that when the price decreases from 5 to 1, the demand increases from 10 to 30. Hence, we can also see there is an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded as per the schedule. When we have a diagram of same and we draw the demand curve based on the plots, based on the situations given in the schedule, we see as the price is decreasing from 5 to 1, demand is increasing from 10 to 30. We plot all the situation, we draw the demand curve which is named as DD. DD is the demand curve. Demand curve is downward sloping from left to right.
This negative slope of the demand curve is due to the inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded, which is given in the law of demand. Are we clear? That's all we have in the law of demand in today's lecture. Thank you so much.